what is your chemical equilibrium. So let's move on. Today, I think so it would be a concluding lecture for our chapter because we are continuing with this chemical equilibrium since last 4 to 5 lectures has been done for this chemical equilibrium, and we are seeing this chapter well. Just I think so it's a picture bit blurred. Let me wait. I think so as of now it's getting clear picture. Okay, so welcome again to the chemical equilibrium, and it may be a concluding lecture because today theoretically this chapter will be covered, and then afterwards we'll proceed to the maybe numericals. Hope you don't have any difficulty with this chapter what we are seeing here in this chemical equilibrium, and today we are going to discuss the last concept related here in this chapter is nothing but the Le-Chatelier's principle. Till date, what we have discussed here in this chapter, number one is nothing you can say reversible, irreversible reactions, then types of equilibrium, that is physical equilibrium as well as you can say chemical equilibrium we have seen. Then we have seen a definition of chemical equilibrium, characteristics of chemical equilibrium. Furthermore, we have seen that is a law of mass action. And what is the rate of chemical reaction? What is law of mass action? And what is chemical equilibrium constant? We have seen chemical equilibrium constant as Kc as a Kp. And we have also derived the relation between Kc and Kp. So we have seen the relation between Kc and Kp. ये भी हमने उसके अंदर discuss कर दिया है. Clear? Bit going ahead. Also, we have seen here in the chapter there is chemical equilibrium of homogeneous reaction and heterogeneous reaction. How the chemical equilibrium equation can be represented for homogeneous reaction and heterogeneous reaction. Homogeneous reaction is a reaction in which a state of the substances, that is all reactant and products, are in the same state, same phase. And heterogeneous reaction in which the state of reactant and product may be different. That is what we have seen. Then bit proceeding ahead, also we have seen that units of K means chemical equilibrium constant. What are the units of K? We have seen the formula to calculate the units of K, and also we have seen unit depends upon the chemical equilibrium equation. ये हमने उसके अंदर कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किस तरह से होता है, ठीक है. And then today we are going to discuss that is Le-Chatelier's principle. So let's move to the Le-Chatelier. Pronunciation may be different. Somewhere it is a Le-Chatelier, somewhere it is Le-Chatelier's principle. So pronunciation as per your compatibility. So let's move the concluding topic. Le-Chatelier principle and its application. Its application. Okay. तो आपके बुक में हेडिंग ऐसा है. अगर बुक का हेडिंग देखते हैं तो Le-Chatelier principle and its application. तो पहले हम लोग what is Le-Chatelier principle डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद उसका एप्लीकेशन डिस्कस करें. What is the application of this Le-Chatelier principle? So सबसे पहले डिस्कस करेंगे what is Le-Chatelier's principle या Le-Chatelier principle. ये क्या है principle and how it is used and how it is what are the industrial applications of this Le-Chatelier principle. अब देखिए starting में when I have given the introduction of this chapter, I have stated that the chemical equilibrium means a kind of balance which is present in many of the things that may be in a thinking, that may be in a social life, that may be in chemical reactions. But basically here in this chapter we are talking about chemical equilibrium, मतलब equilibrium which exists in a reversible chemical reactions. Basically we have seen that. And this is the kind of balance. So there is an equilibrium in many of the things, especially when we talk about the reversible reactions. So we not very well, there is a reversible reaction kind of balance. Say, for example, we have seen the reaction many times. A moles of A reacts with B moles of B, produces C moles of C plus D moles of D. This is the reaction what we have seen. और इस reaction का Kc और Kp दोनों हमने देखे हैं. So these are the reactant and these are the products. Now, this reaction has
this is forward reaction and this is, you can say, reverse reaction or you can say backward reaction. तो इस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन मिलता है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, दो रिएक्शन हम लोग इसके अंदर मिलता है. नाउ थिंक इज दैट इनिशियली हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट नहीं होते हैं. सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट नहीं होता है. धीरे धीरे प्रोडक्ट तैयार होते हैं और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है. तो हमने उसके लिए ग्राफ भी देखा था कि हाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस आफ्टर सर्टेन टाइम. Initially, rate of forward reaction is higher because the concentration of reactant is higher. Afterwards, the rate of backward reaction also increases because concentration of this also increases, and that's why rate of reverse reaction also increases. And at a certain moment, both rates become equal. Rate of forward reaction becomes equal to rate of reverse reaction, and that state is called as a state of chemical equilibrium. That state is called as state of chemical equilibrium. So, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में याद रखिएगा, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम आना ही आना है, provided that reaction is carried out in a controlled atmosphere, मतलब in a artificially arranged manner, closed container वगैरह, इसमें रिएक्शन कैरी किया जाता है, तब आ जाता है. So in that sense, this is the reversible reaction in which equilibrium has to attain. Equilibrium आना ही आना है और होता है, equilibrium हर चीज में होता है. सवाल यह है, ली चैटलियर ये साइंटिस्ट के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि अगर हम कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है और उसका इक्विलिब्रियम हम डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं तो व्हाट हैपेंस. सो क्या होता है, ऐसा एक सवाल है. And he tried to find out answer for that one, and he put forth answer for that, and that answer is nothing but the Lee Chatelier principle, or you can say La Chatelier principle. So, what is Lee Chatelier principle? फ्रांस में उसका प्रोनाउंसिएशन ला किया जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ला किया जाता है. That's why I'm saying La Chatelier principle या फिर Lee Chatelier principle. हम हमारे इंडियन और महाराष्ट्रियन कॉन्टेक्स्ट में तो हम लोग ली चैटलियर प्रिंसिपल ही कहेंगे उससे. आप आपके हिसाब से प्रोनाउंसिएशन उसका कीजिएगा. So, according to this Lee Chatelier principle, this principle states that whenever any system in equilibrium, see, any system in equilibrium is subjected to change, any external force, and that is subjected to any external force or any external change, then the equilibrium in a reaction shifts in such a direction so as to nullify the change what we made to the system. अभी स्टेटमेंट लंबा है तो एक बार मैं आपको बता दूंगा और आपके दिमाग में रहेगा, आपको याद आएगा, ऐसा नहीं होगा. So that's why we have to revise it well and recall it well. So उनका कहना ये है कि कोई भी सिस्टम जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, देखिए कोई भी सिस्टम चाहे नेचुरल हो आर्टिफिशियल, वो अपने इक्विलिब्रियम में है. अगर हम उसका इक्विलिब्रियम बाहर से कोई फोर्स लगा के डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जो सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है उसका इक्विलिब्रियम हम लोग बाहर से कोई फोर्स लगा के डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो वो सिस्टम अपने आप में कुछ बदलाव कर देता है. सिस्टम अपने आप कुछ बदलाव कर देता है सो एज टू नलिफाई द चेंज. हमने जो बाहर से चेंज किया उसको न्यूट्रलाइज करे, उस हिसाब से वो सिस्टम अपने अंदर चेंज कर लेता है. एंड दैट इज नथिंग बट द ली चैटलियर प्रिंसिपल. उसके कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा. शायद हम भी धीरे धीरे बड़े हो चुके हैं, आप भी धीरे धीरे बड़े हो चुके हो, और बचपन में आप जब छोटे थे तो हमें पता नहीं होता ना कि फैन क्या होते हैं, चीजें क्या होती है, गाड़ी क्या होती है ना. सो कभी-कभी शायद आप में से कुछ लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस काउंटर किया होगा कि टेबल फैन होता है और टेबल फैन लगाया तो फैन आपने इसमें घूमता है, तो बच्चे उसमें उंगली डालने की कोशिश करते हैं. ये खतरनाक होता है. डोंट डू लाइक दिस वन. अभी तो आप लोग मैच्योर हो चुके हो. डोंट डू लाइक दिस वन. इट्स नेवर डू इट लाइक दिस वन, और हूएवर इज डूइंग स्टॉप इट. बट मानो हम लोग ऐसा हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, सो वो फैन इधर-उधर डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है ना. या फिर हमारे बॉडी के अंदर देखिए कि हमारे बॉडी के अंदर जब फॉरेन पार्टिकल्स एंटर करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जब फॉरेन पार्टिकल एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी उसके ऊपर अटैक करता है. हमारे बॉडी के अंदर बैठे जो सोल्जर्स होते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं, और कभी-कभी इस कारण से फीवर भी आ जाता है. तो फीवर आने का कारण ये भी होता है कि एक्सटर्नल पार्टिकल्स, एक्सटर्नल वायरसेस एंटर इन आवर बॉडी एंड आवर बॉडी इज फाइटिंग अगेंस्ट दैट. उसके कारण बॉडी का टेंपरेचर बढ़ता है. इट हैपेंस. दैट इज द रिएक्शन. तो हमारे बॉडी का अपना एक इक्विलिब्रियम है, टेंपरेचर का इक्विलिब्रियम है. ह्यूमन बॉडी का टेंपरेचर 36 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस इतना होता है, या फिर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. और इससे ज्यादा अगर बढ़ेगा तो हम कहते हैं कि टेंपरेचर आया, मतलब फीवर आया. और फीवर आने का कुछ तो कारण होता है. अपने आप तो फीवर आएगा नहीं. कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, कुछ तो कारण होता है जिसके कारण ये वायरल इन्फेक्शन आ जाता है. तो इसका मतलब यही है ना कि हमारे बॉडी का टेंपरेचर 36 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर है. बॉडी ट्राई टू मेंटेन इट. ठंड के दिनों में भी मेंटेन किया जाता है और समर के दिनों में भी वो टेंपरेचर मेंटेन किया जाता है. तो हम लोग समर के दिनों में
थोड़ा सा छाव में जाना पसंद करते हैं, ज्यादा पानी पीना पसंद करते हैं, जरा ठंडा खाते हैं हम लोग ताकि बॉडी का टेम्परेचर बना रहे। और विंटर के दिनों में हम लोग टेम्परेचर फॉल डाउन होता है, तो हम कुछ खाना खाते हैं, ज्यादा खाते हैं ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाइजेशन प्रोसेस से और हीट तैयार हो जाए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो हमारा बॉडी एक इक्विलिब्रियम में, बॉडी का टेम्परेचर एक इक्विलिब्रियम में देखिए, वो नहीं बदलता है। जिस दिन बदलेगा हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, है ना? तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलेगा, वो बदलेगा उस दिन हम लोग हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है हम लोग को इन ऑर्डर टू रिस्टोर दैट टेम्परेचर। लेकिन मीनवाइल अगर वो चेंजेस हो रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, कुछ वायरोलॉजिकल बैक्टीरियल चेंजेस हो रहे हैं, तो वो वायरसेस आ रहे हैं, बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया एंटर कर रहे हैं, तो बॉडी उसको रिएक्शन देने की कोशिश करता है ना? तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने की कोशिश कुछ बाहरी फैक्टर करता है, हमारी बॉडी उसको रिएक्शन देके वापस उसे रिस्टोर करता है। ली चैटरल एग्जैक्टली यही कहता है। ली चैटरल का ये कहना है कि कोई भी सिस्टम जब अपने इक्विलिब्रियम में काम कर रहा है, इक्विलिब्रियम में चल रहा है, और किसी भी तरीके से हम उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो सिस्टम अपने आप चेंज कर लेता है। और वो चेंज इस तरीके से कर लेता है ताकि बाहर से जो हमने फोर्स लगाया उसके इक्विलिब्रियम के अंदर, उसे न्यूट्रलाइज करे, उसे नलीफाई करे, उसे नहीं मिले। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर देखिए, हम एसिडिटी के लिए एंटासिड खाते हैं, है ना? अभी खास करके सिटी लाइट रहने वाले हमारे जो बच्चे हैं, उनको एसिडिटी बहुत कॉमन डिसीज पता है। गांव के जो बच्चे हैं उनको एसिडिटी नाम की डिसीज कोई पता नहीं होता, बिकॉज उनको एसिडिटी होती नहीं, वहाँ पे क्लीन इन्वायरमेंट, स्ट्रेस लेवल कम होता है, खेलते भी ज्यादा है, तो एसिडिटी होती नहीं। सिटी लाइट बच्चों को स्ट्रेस लेवल भी ज्यादा होता है, खामखा फिजिकल एक्टिविटी कम होता है, स्पोर्ट्स कम होता है, और क्लीन एटमॉस्फेयर भी नहीं मिलता, तो एसिडिटी हो ही जाता है। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जब एसिडिटी होती है, तो ऊपर से जो हम मेडिसिन खाते हैं उसके अंदर बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं, तो बेसिक सब्सटेंसेस जाके हमारे बॉडी के अंदर के एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। हम स्कूल से ये रिएक्शन देखते हैं, एसिड प्लस बेस प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जब एसिड तैयार होता है, तो हम जो मेडिसिन खाते हैं उसके अंदर कोई ना कोई बेस का मॉलिक्यूल होता है, जो बेस मॉलिक्यूल एसिड को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट एंड वाटर तैयार करता है, तो एसिडिटी गायब होती है, न्यूट्रलाइजेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है ना? यही कारण है, ली चैप्टर ये कहता है कि किसी भी सिस्टम अगर वो इक्विलिब्रियम में है, अपना इक्विलिब्रियम में है, और उसका इक्विलिब्रियम हम बाहर से डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, सो एज टू नलीफाई द चेंज। हमने जो बाहर से चेंज करने की कोशिश की है, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स ने चेंज करने की कोशिश की है, उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। दैट इज कॉल्ड ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। सो होप एवरीवन गॉट इट। तो स्टेटमेंट वापस एक बार बताता हूं मैं, व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर ली चैटलियर प्रिंसिपल? व्हेनेवर एनी सिस्टम इन इक्विलिब्रियम is subjected to external change. Whenever any system in equilibrium is subjected to external change, then the equilibrium shifts in such a direction. Equilibrium of the system shifts in such a direction so as to nullify the change, so as to neutralize the change. What we try to make it in the system. So that is what we can say Lee Chatterjee principle. अभी ये स्टेटमेंट आपको जितना समझेगा उससे ज्यादा उसके एग्जांपल के अंदर और समझेगा। मतलब लेट्स कम टू द एप्लीकेशंस की बात करते हैं। सो सेकंड जो पार्ट आता है दैट इज नथिंग बट द एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल। ओके, अभी एप्लीकेशन के अंदर ये ली चैटलियर प्रिंसिपल और ज्यादा आपको समझेगा, और ज्यादा समझेगा, बिकॉज विद वन ऑफ द एग्जांपल वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन। Say for example, we have example production of ammonia. So we have N2 plus thrice H2 produces twice NH3. अभी देखिए, मैं ये एग्जांपल आपको बार बार दे रहा हूँ, ये वाला एग्जांपल, ये तो जनरलाइज, ये तो पर्टिकुलर एग्जांपल, ये बार बार दे रहा हूँ मैं आपको। There are many examples. Even in our book there are many examples this state, but सारे एग्जांपल एट टाइम ध्यान में रहेंगे तो मुश्किल है। एक ही एग्जांपल है जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो थोड़ा सा इजियर होता है। That's why I'm putting the same example. Otherwise there are many examples listed in our book. Even in reference book we'll get more. So again and again I'm putting the same example because वो सामने रहेगा तो हमेशा इजी है, मतलब उसे प्रेजेंट करना और याद रखना। This is the reaction. और मैंने कहा कि this reaction is very important commercially too, जिसके अंदर नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। सो अमोनिया तैयार होता है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। प्लस 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 यहाँ पे हीट है, हीट मतलब इस रिएक्शन के अंदर जब अमोनिया तैयार होता है तो हीट रिलीज होती है, मतलब दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो रहा है, ये रिएक्शन है। अभी इस रिएक्शन के अंदर नाइट्रोजन हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट रहेंगे, जैसे इनके बीच में रिएक्शन होता है, अमोनिया तैयार होगा, हीट रिलीज होगी। धीरे धीरे ये रिएक्शन अगर हम क्लोज कंटेनर में कंडक्ट करते हैं तो अमोनिया डिकम्पोज होकर वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिल जाएगा। सो दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन जिसके अंदर मानो इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। अभी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, इस रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम आ चुका है, क्या हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं?
अगर हम कुछ एक्सटर्नली फोर्स बताते हैं, एक्सटर्नली कुछ चीजें बदलने की कोशिश करते हैं, तो क्या इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम बदलेगा? तो यस, बदलता है। वो किस तरीके से, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चेंज करते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करते हैं? नंबर वन फैक्टर इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन। नंबर वन फैक्टर इज नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन। ये पहला फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन, जो इक्विलिब्रियम को चेंज करता है। जी, याद रखिएगा कि कॉन्सेंट्रेशन डजंट अफेक्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वर्ड्स काफी ठीक से यूज करने हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज के एंड केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, दोनों अलग चीज है। सो कॉन्सेंट्रेशन इसे अफेक्ट करता है। क्या होता है देखिए कि अभी इस रिएक्शन को हम लोग अगर लॉ ऑफ मास में अप्लाई करते हैं, इस रिएक्शन को, तो क्या आता है हमारा? Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? NH3 का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2 अपॉन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2, और हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू 3 रहेगा। दिस इज हीट। तो हीट इज अ प्रोडक्ट बट इट कुड नॉट बी कंसीडर्ड हियर बिकॉज़ दैट इज नॉट द सब्सटेंस एक्चुअली फॉर्म। सो वो यहाँ पे नहीं लिया जाता है। सो ये रिएक्शन, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट यहाँ पे लिया जाता है। ये हम लोग को इसका केस मिल जाता है। अब देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम इस रिएक्शन के अंदर इसका या इसका किसी का तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, हम लोग इंक्रीज करते हैं। सो किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे। मानो हम लोग रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, ऑलरेडी इस रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम था, और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार इक्विलिब्रियम आने के बाद, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन जो भी होता है वो कांस्टेंट रहता है। व्हाटएवर द कॉन्सेंट्रेशन दैट रिमेन्स कांस्टेंट। सो इक्विलिब्रियम आने के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन ना ही बदलेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन ना ही बदलेगा। मानो हम ऐसा करते हैं कि इसका कॉन्सेंट्रेशन है 40% और इसका कॉन्सेंट्रेशन है 60%। इक्विलिब्रियम आने के बाद माना हमने इसका है 40%, इसका है 60%। सो दिस इज इन परसेंटेज, दिस इज इन परसेंटेज। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है। जरूरी नहीं कि 50-50 हो। इक्विलिब्रियम आने के बाद इनका कॉन्सेंट्रेशन 40% है और इसका कॉन्सेंट्रेशन 60% है। अभी इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो इसका एक मॉलिक्यूल इधर जाएगा तो इमीडिएट इसका एक मॉलिक्यूल इधर आएगा, तो अभी कॉन्सेंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली कॉन्सेंट्रेशन ऐड कर रहे हैं। मानो हम लोग नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो इसके अंदर अगर हम लोग 10 कॉन्सेंट्रेशन ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर प्लस प्लस 10% कॉन्सेंट्रेशन ऐड कर रहे हैं, दोनों का मिला के। अब देखिए इक्विलिब्रियम रिएक्शन का कहां पे है? 40-60 पे है। अभी हमने इसके अंदर 10% कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया। जैसे हम इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू राइट हैंड साइड। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड, रिएक्शन स्पीड में होता है, और हियर यू कैन से इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू राइट हैंड साइड, मतलब प्रोडक्ट साइड, राइट हैंड साइड। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू राइट हैंड साइड। इक्विलिब्रियम इस तरफ चला जाएगा। इस तरफ क्यों चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अभी ज्यादा हो चुका है, और इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दैट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ने के कारण दोनों का इक्विलिब्रियम वापस 40-60% जो है, वापस 40%-60% आएगा। अगर हम उल्टा करते हैं, हम मानो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, ये नहीं करते हैं, हम इसका कॉन्सेंट्रेशन प्लस 10% करते हैं, तो क्या होगा? रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, और इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस। याद रखिए, फर्स्ट केस में क्या किया था हमने? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया था, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू राइट हैंड साइड। सेकंड केस में हमने क्या किया? इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, तो रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेफ्ट हैंड साइड। दैट मींस अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स, जिस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है, इसमें अगर हम लोग बाहर से रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का किसी भी कॉन्सेंट्रेशन अगर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स आइदर राइट हैंड साइड आइदर टू लेफ्ट हैंड साइड। सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम विल बी मेंटेन, मतलब इस केसी विल बी मेंटेन कांस्टेंट। हम इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते तो इनका अपने आप बढ़ेगा, और इनका बढ़ाते तो इसका अपने आप बढ़ेगा, बिकॉज़ द रेशियो हैज टू बी कांस्टेंट। दिस केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मस्ट रिमेन अ कांस्टेंट। So that's why equilibrium shifts either to right hand side, equilibrium shift either to left hand side. That happens over here. So in this sense, you can say if we increase the concentration of reactant, equilibrium shift to right hand side, this case. Or if we increase the concentration of product, equilibrium shift to left hand side, this happens. So this is the change. This is the change. So this is according to Le-Chatelier principle. Le-Chatelier क्या कहता है? किसी भी रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आ चुका है और उसका इक्विलिब्रियम हम शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, या इक्विलिब्रियम के अंदर बाहर से कुछ इंटरप्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो उसका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है इन ऑर्डर टू नलिफाई द चेंज। हमने इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट हुआ, तो हमारा न्यूट्रलाइज किया जाता है। हमने जो चेंज किया वो न्यूट्रलाइज किया जाता है। एनी हाउ दिस कॉन्सेंट्रेशन विल बी मेंटेन कांस्टेंट 40% एंड 60%। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है यहाँ पे, दैट इज यू कैन से इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इसके अंदर। अभी ऐसा जरूर नहीं कि हर रिएक्शन के अंदर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो, बट देयर आर सम रिएक्शन इन व्हिच इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज occurs. Now देखिए, this is the thing, this is the reaction in which you can say this heat is released. तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि either there is a exothermic reaction, either there is a endothermic reaction. इस रिएक्शन के अंदर heat is released, किसे कहते हैं exothermic reaction? The reaction in which heat is evolved is called as an exothermic reaction, and the reaction in which heat is absorbed is called as an endothermic reaction. So इस रिएक्शन के अंदर क्लियर कट मिलता है यहाँ पे कि प्लस हीट मींस अमोनिया जब तैयार होता है तो इतना हीट रिलीज होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अमोनिया तैयार होगा, हीट रिलीज होगा ही होगा, हीट रिलीज होगा। दैट्स व्हाई दिस वी कैन से इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम दो चीजें कर सकते हैं। नंबर एक, यू कैन से टेम्परेचर इज इंक्रीज, ये कैसे, और दूसरा टेम्परेचर इज डिक्रीज इस रिएक्शन का। तो क्या होगा, क्या होगा ये हमें डिस्कस करना है। अब देखिएगा, दिस इज बीइंग ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, exothermic reaction, this favors at low temperature, this reaction must favor at low temperature, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर अमोनिया फॉर्मेशन होना है तो दिस मच अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी रिलीज। मैं इसे हटा देता हूं। ओके, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब अमोनिया तैयार होना है तो हीट बाहर आना ही आना है, हीट को बाहर आना पड़ेगा तभी जाके अमोनिया तैयार होता है। अगर हीट बाहर नहीं आएगा तो अमोनिया तैयार नहीं होगा, ये याद रखिएगा। बीइंग दिस द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अमोनिया तैयार होना है मतलब हीट रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा तभी तो अमोनिया तैयार होगा, ऐसा इसका मतलब है। सो अमोनिया अगर तैयार करना है तो हीट मस्ट बी evolved, so this reaction has to be carried out at low temperature, this reaction carried out as the low temperature, so we can say टेम्परेचर इज इंक्रीज, इस रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम इस तरफ आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर हीट बाहर आ रहा है, ऑलरेडी इसके अंदर हीट बाहर आ रहा है, और हीट बाहर आएगा तो दिस रिएक्शन फेवर्स एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है आप जानते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन व्हिच हीट इज इवॉल्व्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवर्स एट लो टेम्परेचर, और उसके अपोजिट में एंडोथर्मिक रिएक्शन, endothermic reaction favors at high temperature, high temperature। अभी इस चीज को मैं हमारे डाइजेशन के साथ जोड़ना चाहूंगा, जो डेली रूटीन लाइफ के एग्जांपल है हम अच्छी तरह जानते हैं। आप अच्छी तरह जानते हो अभी विंटर के दिन चल रहे हैं और धीरे धीरे अभी हम लोग समर की तरफ मूव करेंगे। सो क्या आपका क्या एक्सपीरियंस कहता है, क्या हम लोग विंटर में ज्यादा खाना खाते हैं या समर में ज्यादा खाना खाते हैं? यस, इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, क्या हम लोग विंटर में ज्यादा खाना खाते हैं या फिर हम समर में ज्यादा खाना खाते हैं? शायद हमारे बच्चे खाना ही नहीं खाते, इसलिए कोई एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना चाहता। यस प्लीज एनीवन, क्या हम लोग समर में ज्यादा खाना खाते हैं या विंटर में ज्यादा खाना खाते हैं? अथवा saying कि we eat similar food almost in winter and summer season. Is there any different opinion from others? अथर्व कहना कि दोनों सीजन में हम तो ज्यादा खाना खाते हैं, सेम। पार्थ is saying विंटर में हम लोग ज्यादा खाना खाते हैं। Is there any third opinion, different opinion या similar opinion? Do you agree with Atharv? He is saying that we eat similar in winter as well as in summer. So उसके साथ कायम चलते फिर बोलो। I would like to hear from your side, your opinion, please. So may I? Yes, yes, please. So we eat a lot in winter because to fight with cold. Very good, very good. Okay, so मतलब तीन ओपिनियन यहाँ पे आ गए। पायल का कहना यह था कि विंटर में हम लोग ज्यादा खाना खाते हैं ताकि बाहर का जो ठंड क्लाइमेट है उसके साथ हम फाइट कर सके, हमारी बॉडी फाइट कर सकते हैं। और अथर्व ने शायद अलग कहा था, उसका कहना था कि हम लोग विंटर में भी उतना ही खाना खाते हैं जितना कि हम लोग समर में खाते हैं, है ना?
दैट मे बी अ बिट नॉट ऑनेस्ट विद दिस, बट एक्चुअली ये बात ट्रू है ना। आप देखिए ना कि इंडिया में सारे फेस्टिवल्स की भी बात करते हैं, दिवाली जैसा फेस्टिवल आता है जिसके अंदर मीठा मतलब स्वीट आइटम्स ज्यादा बनते हैं, वो विंटर में होता है। उसके पीछे ट्रेडिशनल रीजन साइंटिफिक यही भी है कि विंटर में बाहर का ठंड ज्यादा होता है। अभी एक 8 दिन पहले पुणे सिटी में भी मतलब टेम्परेचर जो है मर्क्यूरी हैज गॉन डाउन अप टू 8, टेम्परेचर 8 डिग्री था बाहर का। अब देखिए ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस होता है और बाहर का टेम्परेचर 8 डिग्री है। और एक जाना माना कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनामिक्स का जो हम अगले साल देखेंगे, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड। अभी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस है और सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 8 डिग्री है। तो सिंपल बात है कि हमारे बॉडी से टेम्परेचर सराउंडिंग में चला जाएगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर फॉल डाउन होने लगता है। और हमारे बॉडी का टेम्परेचर फॉल डाउन होगा तो बॉडी के अंदर के सारे रिएक्शन बिगड़ जाएंगे। हाँ, कई सारे मेनी रिएक्शंस आर गोइंग ऑन इन आवर बॉडी, देयर आर मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन इन आवर बॉडी। और इन रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। अभी सराउंडिंग के कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर फॉल डाउन हो रहा है तो बॉडी हैज टू रिस्टोर द टेम्परेचर। तो हम जो ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा टी लाइक सब्सटेंसेस हम लोग लेते हैं, ज्यादा स्वीट सब्सटेंसेस हम लोग लेते हैं और हमारा डाइजेशन इटसेल्फ इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखिए, हम जो खाना डाइजेस्ट करते हैं तो एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज होती है और जो हमारे बॉडी को मिलती है। तो इसलिए विंटर में हम लोग ज्यादा खाना खाते हैं। दिस इज वेरी इट्स वेरी साइंटिफिक, इट्स वेरी साइंटिफिक। सो दैट्स व्हाई विंटर में हम ज्यादा खाना खाते हैं और डाइजेशन इटसेल्फ इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हम जब खाना डाइजेस्ट करते हैं तो हीट रिलीज होता है और बॉडी को मिलता है तो बॉडी उससे काम चला लेती है। दिस हैपेंस। वही केस हो जाती है, उल्टा केस हो जाता है जब हम समर में जाते हैं। समर में बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। अभी आप लोग विदर्भ मराठवाड़ा उधर जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस होता है। 48 डिग्री सेल्सियस वो गढ़चिरौली वगैरह इस एरिया में देखते थे 48 डिग्री सेल्सियस। आप इमेजिन कीजिए पूना सिटी में 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है हमारे। हाँ, मतलब बुरे हालत हो जाते हैं हमारे पूना सिटी में 41 42। और वहां पे विदर्भ में हम लोग 45 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रहते हैं, जलगांव गढ़चिरौली उस एरिया में। आप देखिए बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, हमारी बॉडी का 36 डिग्री टेम्परेचर है। बॉडी के अंदर हीट फ्लो हो जाएगा क्योंकि हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट इनटू कोल्ड। सराउंडिंग का टेम्परेचर है 45 डिग्री, वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और उसे कूल डाउन करने के लिए फिर हम लोग छाव में जाना पसंद करते हैं, ठंडी चीजें खाना पसंद करते हैं, हम कम खाते हैं क्योंकि डाइजेशन होगा तो हीट रिलीज होगी। ऑलरेडी बॉडी के अंदर हीट ज्यादा आ रहा है तो नहीं होता है। तो समर के दिनों में हम खाना भी कम खाते हैं। कहने का मतलब ये था डाइजेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो विंटर में हम लोग ज्यादा खाते हैं, दैट फेवर्स एट लो टेम्परेचर। डाइजेशन फेवर्स एट लो टेम्परेचर एंड डाइजेशन डू नॉट फेवर एट हाई टेम्परेचर। सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा समर में तो डाइजेशन डू नॉट फेवर्स, और विंटर सीजन में डाइजेशन फेवर्स बिकॉज इट्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वो फेवर होता है। सिमिलर लाइक दैट दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसके अंदर हीट रिलीज हो रहा है। तो जिस तरीके से विंटर में ज्यादा खाना खाते हैं वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उसी तरीके से अमोनिया फॉर्मेशन हीट रिलीज होता है। दिस रिएक्शन मस्ट फेवर एट लो टेम्परेचर। So exothermic process favors at low temperature. Exothermic process favors at low temperature. Endothermic process favors at high temperature. Endothermic किसी रिएक्शन के अंदर अगर हीट एब्जॉर्ब करना है तो दैट हैज टू फेवर एट हाई टेम्परेचर। तो जिस रिएक्शन, जैसे घर में चाय बनाना है तो चाय बनाना है तो उसे हीट करना पड़ता है बिकॉज दैट फेवर्स एट हाई टेम्परेचर। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस फेवर्स एट हाई टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक प्रोसेस फेवर्स एट लो टेम्परेचर। तो इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो दिस रिएक्शन जो है उल्टा चलता है, मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्विलिब्रियम इस तरफ आएगा बिकॉज टेम्परेचर बढ़ा रहे तो दिस विल बी अनकंफर्टेबल, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड इक्विलिब्रियम इस तरफ चला जाएगा। हम टेम्परेचर स्लो करेंगे तो इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा। दैट्स व्हाट हैपेंस हियर। सो बी क्लियर ना हियर? We are talking about Lee-Chapelier principle and the factors which affect the equilibrium. So number one is the concentration, number two is the temperature. So exothermic reaction favors at low temperature, endothermic reaction favors at high temperature. Particularly when we take this example, at this case, this is the exothermic reaction. That's why it will favor at low temperature. So if temperature is decreased, equilibrium shifts to right hand side, more and more ammonia will be produced. Or if we increase the temperature, then this reaction will go in a reverse manner. So equilibrium shift to right this hand side. So this is according to Lee-Chapelier principle, effect of temperature. Next is effect of pressure. Effect of pressure. Pressure के तो हम चित्र जाते हैं PV is equal to nRT. तो P is equal to N upon V RT.
that is P is equal to CRT because हम जानते हैं C is equal to N upon V. C is equal to N upon V. ये जो है N upon V इसके बदले C आ सकता है तो P is equal to CRT. That is what we can say. ये आ जाता है. So pressure is concentration into RT. जिसका concentration ज़्यादा हो उसका pressure भी ज़्यादा होगा. We have to discuss how this pressure term affects. दूसरा तरीका देखिए, इसके नंबर ऑफ मोल्स देखिए, इसके नंबर ऑफ मोल्स 3 और 1 4 मोल्स है, इसके नंबर ऑफ मोल्स 2 है, बस 2 ही है, बाकी तो है नहीं है. नाउ प्रोडक्ट के मोल्स 2 है और रिएक्टेंट के मोल्स 4 है, तो 4 मोल्स के लिए जगह ज्यादा चाहिए, 2 मोल्स के लिए जगह कम चाहिए. तो अगर इस रिएक्शन के ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फेवर्स टू दिस डायरेक्शन. इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फेवर्स टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स. अगर हम इसका प्रेशर कम करते हैं तो रिएक्शन फेवर्स इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स. तो इस तरीके से होता है कि कंटेनर है, सपोज दिस इज द कंटेनर और इस कंटेनर में देखिए हम लोग ये रिएक्शन कैरी कर रहे हैं, तो 4 मोल ज्यादा है और 2 मोल्स कम है. तो अगर इसके ऊपर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो दिस रिएक्शन फेवर्स इन दिस डायरेक्शन. सो इंक्रीज इन प्रेशर, so you can say increase in pressure, equilibrium shifts to right hand side, decrease in number of moles shifts to right hand side. पर्टिकुलर केस ऑफ हम अमोनिया की बात करें, पर्टिकुलर केस ऑफ नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं. सो इस केस में क्या हो रहा है कि अगर हम इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो equilibrium shifts to right hand side because that is a decrease in number of moles and that's why reaction favors in that direction. Pressure अगर हम decrease करते हैं तो reaction favors in this opposite direction, so equilibrium shift to left hand side. That happens with the pressure because देखिए ना, P is equal to CRT. RT तो constant है तो concentration matter करेगा. So if pressure is increased तो the reaction favors in low concentration and if pressure is decreased reaction favors to high concentration to this one. That is the number of moles. तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, N upon V हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो इन दैट सेंस दिस कैन बी प्रूव्ड मैथमेटिकली एज वेल एज यू कैन से थ्योरेटिकली. तो थ्योरेटिकली हम ऐसा कह सकते हैं द रिएक्शन pressure affects for this reaction where pressure is increased reaction favors in decrease in number of moles or decrease in pressure favors the reaction in increase in number of moles. So particularly this ammonia के केस में this is low number of moles, this is high number of moles. So if pressure is increased equilibrium shift to right hand side or if pressure is decreased reaction favors in this side, equilibrium shifts to left hand side. That happens here regarding the pressure. And last factor is nothing but the catalyst. Last factor is nothing but the catalyst. अभी catalyst के बारे में तो हम अच्छी तरह जानते हैं. Catalyst generally increases the rate of reaction. Catalyst generally increases the rate of reaction. So how catalyst increases the rate of reaction? तो उसका पीछे रीजन है कि catalyst settle all the reactant molecules on its surface. All reactant molecules on the surface. और if concentration increases, rate of reaction increases. तो होता क्या है कि इसके अंदर देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन का रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग. दिस इज द कैटलिस्ट. ये कैटलिस्ट का मेटल पीस है. जनरली कैटलिस्ट यूज्ड इन सॉलिड स्टेट. यहाँ पे कैटलिस्ट है तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे सेटल डाउन होते हैं इसके सरफेस के ऊपर, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. सो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जैसे ही इसके सरफेस के ऊपर सेटल डाउन हो जाएंगे कंसंट्रेशन बढ़ेगा because concentration is N upon V. Number of molecules are present on the surface of this catalyst and that's why that increases and hence the rate of reaction also increases. So generally catalyst increases the concentration and hence increases the rate of reaction. ये होता है. So this is what we can say applications of this Lee-Chatterjee principle. तो सबसे पहले once again आते हैं कि what is Lee-Chatterjee principle. Lee-Chatterjee का कहना ये है whenever any system is in equilibrium subjected to external change then equilibrium shifts in a such a direction so as to nullify the change what we made to the system. Number one. Number two, what are its applications or how we can whether equilibrium is affected by the factors. What are the factors which affect the equilibrium? So number one is concentration. So if we increase the concentration of either reactants or product, then equilibrium shifts accordingly. If we increase the concentration of reactant, equilibrium shifts to right hand side. If we increase the concentration of product, equilibrium shifts to left hand side. So concentration affect the equilibrium. So on whatever the side we increase the concentration, equilibrium shifts to opposite to that. So that is concentration. Next factor is nothing but the temperature. So temperature is also one of the important factor. हम इस तरह जानते हैं कि exothermic reaction favors at low temperature and endothermic reaction favors at high temperature. So particularly when we talk about the ammonia case, it is an exothermic reaction. That's why it favors at low temperature. So if temperature is increased, the equilibrium shift to left hand side, and if temperature is decreased, equilibrium shift to right hand side. That happens in case of ammonia. Endothermic reaction, that what we use. Then next is the effect of pressure. So generally pressure works over there, and if pressure is increased, equilibrium shift to decrease in number of moles, or if pressure is decreased, equilibrium shift to increase in number of moles. That happens, or we can mathematically prove with this equation. PV is equal to nRT, P is equal to NV upon RT, NV is nothing but the concentration. So concentration is, you can say, higher than equilibrium shift to leftward direction, or lower shift to right hand side. So that happens. That is also effect of the pressure. And last is nothing the catalyst. Catalyst increases the rate of reaction. No doubt at all. How it increases the rate of reaction? Catalyst adsorb
all the reactant molecules on its surface. Or if reactant molecule adds up on the surface, that increase the rate concentration, and concentration increases the rate of reaction. And the last part, what are the industrial applications of this Lee-Chatterjee principle? Within 2 minutes, within 2 minutes. What are the applications, industrial application of Lee-Chatterjee principle? जैसे मैंने बताया कि it is not only theoretical part. Lee-Chatterjee principle is very widely used in sugar industry, in chemical industry, or in many industries. अभी देखिए कि take a particular example of this ammonia. Yeah, ammonia का example लेते हैं because ammonia is very commercially produced. Ammonia is a very important content of the fertilizers. और इंडिया इज अ लैंड ऑफ फार्मिंग वेयर वी नीड अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स और इसलिए अमोनिया बहुत कमर्शियल मात्रा में तैयार किया जाता है। अब सवाल यह है कि अमोनिया का इक्विलिब्रियम है, अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ही तैयार किया जाता है और इंडस्ट्री में इस इक्विलिब्रियम का कोई फायदा नहीं है। द रीजन बिहाइंड दैट हमें मोर एंड मोर अमोनिया तैयार करना है, कमर्शियली अमोनिया तैयार करना है, तो इक्विलिब्रियम हमें इस तरफ शिफ्ट करना है, इस तरफ शिफ्ट करना है। सो यूजिंग दिस ली-चैटरजी प्रिंसिपल हम अच्छी तरह जानते हैं कि इक्विलिब्रियम राइट की तरफ शिफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। वी नो वेल बिकॉज़ ली-चैटरजी हैज गिवन दैट पार्ट एंड दैट इज अप्लाइड इन द इंडस्ट्री। तो बॉर्न-हैबर साइकिल, बॉर्न-हैबर प्रोसेस यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अमोनिया। ज्यादा मात्रा में अमोनिया प्रोड्यूस करना है तो इक्विलिब्रियम हमें राइट तरफ शिफ्ट करना है। तो सबसे पहली बात कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन हैज टू बी इंक्रीज्ड। तो इंडस्ट्री में नाइट्रोजन हाइड्रोजन को कंसंट्रेशन इंक्रीज किया जाता है ताकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू राइट हैंड साइड एंड मोर अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। पहली बात। दूसरा टेम्परेचर की बात है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर अमोनिया टेम्परेचर हैज टू बी डिक्रीज्ड बिकॉज़ इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट हैंड साइड। दिस इज एक्सटर्नल रिएक्शन फेवर्स एट लो टेम्परेचर। तो इंडस्ट्री में अमोनिया प्रोड्यूस करना है तो दैट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर फेवर्स फॉरवर्ड रिएक्शन एंड मोर अमोनिया विल बी प्रोड्यूस्ड। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन तैयार हो जाएगा। वी डोंट वांट, वी वांट मोर अमोनिया। सो दैट्स व्हाई this reaction has to be carried out at low temperature. Once this reaction is carried out at low temperature, more and more ammonia will be produced. Next is the effect of pressure. So increasing pressure will shift the equilibrium to right hand side. Increasing pressure will shift the equilibrium to right hand side. So in case of this ammonia, pressure has to be increased. Once we increase the pressure, then equilibrium shift to right hand side. Equilibrium shift to right hand side, and more ammonia will be produced. So in order to produce more ammonia, pressure has to be very high in case of industry. And absolutely हम जानते हैं catalyst increases the rate of reaction, so we need a forward reaction, we need a backward reaction. We have to have catalyst will increase the rate of forward reaction as well as the rate of reverse reaction, no doubt at all. Catalyst को कोई लेना देना है। Catalyst will increase the rate of forward reaction as well as the rate of reverse reaction. So that's why we have to have some promoters which will increase this forward reaction. So that happens and that will be done, and that is only the reaction. With this, this chemical equilibrium chapter ends theoretically over here. So thank you very much. If any doubt, we'll discuss tomorrow. Till then, bye-bye. Thank you very much. See you then.